morning, my dear students. This is the 7th AV assignment of physics of grade 10th. In this AV, we will continue the portion B. Come on the page number 13. We will continue from center of gravity and the balance point. Let's start. A solid body can be balanced by supporting it at its center of gravity. कोई भी solid body है उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? By supporting at its center of gravity. For example, a uniform meter rule has its center of gravity. ठीक है, जो uniform meter rule होता है उसकी center of gravity कहाँ पर होती है? At 50 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, वो 100 सेंटीमीटर का होता है, उसके सेंटर में क्या होगी? उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स 50 सेंटीमीटर मार्क. इट कैन बी बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज by keeping it exactly below the 50 centimeter mark as shown in the figure. This is a meter rule. If we want to balance it on a knife edge, then we keep the knife edge exactly below the 50 centimeter mark. Right? It is possible because the algebraic sum of movement of weights of all the particles of the rule about the knife edge is 0. ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट इज पॉसिबल बिकॉज जो algebraic sum of movement होता है सभी weights का at the particles of the rule. ठीक है, rule the part about the knife edge वो क्या होगा? 0. Right? Similarly, a thin sheet, ठीक है, और लैमिना कैन बी बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ अ नेल. ठीक है, कैसे? उसकी जगह हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मीन जहाँ पर उसके डायगोनल कट कर रहे हैं वहाँ पर एक नेल पर उसे बैलेंस करना हो, जहाँ पर उसकी कैसे नेल पर बैलेंस होगा? जहाँ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पर क्या रख दो? नेल रख दो. राइट. नेक्स्ट, when a body is freely suspended from a point, it comes to rest in such a position that its center of gravity lies vertically below the point of suspension. This fact can be used to locate the position of center of gravity of an irregular lamina. ठीक है, जो ऊपर थे वो थे रेगुलर लैमिना. अब जो इरेगुलर लैमिना है उसकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे वो रेस्ट पर आ जाती है. ठीक है, it comes to rest that is balanced in such a position that its center of gravity lie vertically below the point of suspension. उसकी center of gravity कहाँ पर lie करेगी? Vertically below the point of suspension. This fact can be used to locate the position of center of gravity. ठीक है, इस fact से हम क्या locate कर सकते हैं? Position of center of gravity of an irregular lamina. Next, determination of center of gravity of an irregular lamina by the method of balance using a plumb line. ठीक है, अगर हम किस मेथड से फाइंड, किस मेथड से? plumb line. Let's see. Let A be an irregular lamina. ठीक है, A को ये irregular lamina है for which the position of the center of gravity is to be determined. ठीक है, जिसकी हमने center of gravity की position determine करनी है. Make 3 fine holes. ठीक है, हमने 3 fine holes बनाने हैं A, B and C near the edge of lamina. ठीक है, जो लैमिना का एज है वहाँ पर 3 holes बना दो. Now suspend the given lamina along the plumb line. ठीक है, जो plumb line है उसके कर दो, suspend कर दो. ठीक है, freely suspend कर दो along the plumb line from the hole A. ठीक है, A hole में on a pin. Sorry. Now suspend the हमने गिवन लैमिना को प्लम्ब लाइन के along the plumb line क्या करना है? सस्पेंड करना है on a hole A. ठीक है, from hole A on a pin. ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दो? पिन लगा दो. होल में clamped horizontal on a retort stand. Check that lamina is free to rotate, oscillate on the nail. ठीक है, हमने ये चेक करना है कि फ्रीली क्या करें? ऑसिलेट करें on the nail about the point of suspension. When the lamina has to come rest, the center of the draw straight line AD. ठीक है, अगर जब लैमिना के आगे रेस्ट पर आ जाए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो AD along the plumb line. ठीक है, प्लम्ब लाइन के
पास अलॉन्ग द उसके मीन्स प्लम लाइन के साथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। रिपीट द प्रोसीजर, हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है बाय सस्पेंडिंग द लैमिना थ्रू द होल बी एंड देन थ्रू द होल सी। ठीक है, हमने 3 होल बनाए थे ना, ए बी और सी। पहले हमने ए पॉइंट ए से फ्री सस्पेंड करना है विद द हेल्प ऑफ नेल, फिर बी से एंड फिर सी से, देन फॉर विच वी गेट द स्ट्रेट लाइन बी ई। ठीक है, जो हम कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, बी ई एंड सी एफ respectively. It is noticed that the lines AD, BE and CF intersect each other at a common point G. ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं वो एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, विच इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो क्या होगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। Note, for the stable equilibrium of a body, its center of gravity must be low as possible. It must be above the base and near the geometric center of the body. ठीक है, अगर कोई स्टेबल बॉडी है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, above the base and near the geometric center. Now come, we will discuss the exercise 1B. Come to the written assignment. Assignment number 5. Written assignment number 5. Exercise 1B. Define the term center of gravity of a body. ठीक है, हमने center of gravity of body को define करना है, वो क्या होती है। Center of gravity is the point about which the algebraic sum of movement of weights of particle constitute the body is 0 and the entire weight of the body is considered to be at this point howsoever the body is placed. ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट होता है जहाँ पर अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का अल्जेब्रिक सम जो बॉडी पर लग रहा है उसका होता है 0 होता है, और उसका एंटायर वेट एंड द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। ठीक है, उसका जो वेट होता है बॉडी का इज कंसिडर्ड टू बी एक्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पर एक्ट क्या होता है, इसका कंसिडर होता है एंटायर वेट। ठीक है, एंटायर वेट हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड, बॉडी जैसे मर्जी प्लेस होगी, राइट। ये हमने पढ़ा भी था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट सभी पार्टिकल्स का 0 होता है, और जो उसका इंटायर वेट होता है वो एक्ट होता है इस पॉइंट पर जैसे मर्जी बॉडी प्लेस हुई हो, राइट। नेक्स्ट, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल, गिव एन एग्जांपल। कि ऐसा होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आउटसाइड द मटेरियल लाई करती हो, यस ऐसा होता है। Yes, the center of gravity can be situated outside the ring. For example, center of gravity of ring. ठीक है, जो रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो आउटसाइड दी मटेरियल होती है, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। ठीक है, हमने वो फैक्टर्स बताने हैं जिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। हमने अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, शेप पर, दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट, उस बॉडी में कितना मास है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म वायर है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, इज एट मिड पॉइंट। ठीक है, जो कोई यूनिफॉर्म रॉड है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इसका मिड पॉइंट। बट इफ दिस वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमने ये एग्जांपल बुक में भी रीड की थी, चैप्टर में भी। अगर कोई वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होती है मिड पॉइंट पर। अगर हम सेम वायर को सर्कल में बेंड कर दें देन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास, राइट। Fourth question, what is the position of center of gravity of a rectangular laminar and cylinder? ठीक है, position of center of gravity rectangular laminar और cylinder की क्या है। The position of gravity of a rectangular laminar is at the point of intersection of its diagonal. हमने पढ़ा था ना, जो उसकी होती है वो कहाँ होती है, point of intersection of its diagonal. And third is center is at, cylinder is at the
मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। Fifth question, at which point is the center of gravity situated in a triangular lamina and a circular lamina? ठीक है, center of gravity of a triangular lamina is situated at the point of intersection of its median। ठीक है, यहाँ पर उसके मीडियन इंटरसेक्शन करते हैं ट्राइंगल के, वहाँ पर उसकी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सर्कुलर में क्या होती है? इन दी center, at the center of circular lamina। center of gravity of circular lamina is situated at the center of circular lamina। Sixth question, what is the center of gravity of a uniform ring situated? ठीक है, जो यूनिफॉर्म रिंग होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है? the center of gravity of a uniform ring is situated at the center of ring। ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म रिंग है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? at the center। Seventh question, a square cardboard is suspended by passing a pin through a narrow hole at its one corner। Draw a diagram to show its position, rest position। In the diagram, mark the point of suspension by the letter S and the center of gravity by the letter G। वो बोल रहे हैं एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, ठीक है, जिसे हमने सस्पेंड करना है बाय पासिंग अ पिन थ्रू अ नैरो होल एट द वन कॉर्नर, और उसकी हमने रेस्ट पोजीशन शो करनी है। इन द डायग्राम हमने जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसे हमने एस से मार्क करना है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी से। तो डायग्राम क्या होगा? एक स्क्वायर कार्डबोर्ड ऐसा होता है ना, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड, ठीक है, ये होल कर लिए हमने, ये क्या होगा? इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पर उसके क्या करेंगे? डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ gravity। Write a square cardboard in the rest position with G as the center of gravity and S as the point of suspension। Right, next, explain how will you determine experimentally the position of center of gravity for a triangular lamina। ठीक है, और a triangular piece of a cardboard। हमारे पास एक triangular lamina है, हम उसका experimentally कैसे center of gravity find करेंगे? Let's see। हमने एक ट्रायंगुलर लैमिना लेना है, ठीक है, टेक अ ट्रायंगुलर लैमिना, मार्क 3 फाइन होल्स ए बी एंड सी। ठीक है, एक हमने ए होल मार्क करना है, एक बी करना है और एक क्या करना है? सी करना है। नाउ सस्पेंड द गिवन लैमिना अलोंग द प्लम्ब लाइन फ्रॉम अ होल ए। ठीक है, उसे हमने प्लम्ब लाइन की क्या कर देना है? सस्पेंड कर देना है। चेक दैट द लैमिना इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, हमने चेक करना है कि वो जो हमारा होल है उसके द्वारा वो जब हम उसके सस्पेंड करें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के द्वारा वो क्या करें? ऑसिलेट करें। व्हेन लैमिना हैज कम टू रेस्ट, जब लैमिना रेस्ट पर आ जाए, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए डी। सेम जो हमने अभी अभी पढ़ा ना ये वाला, सेम वैसे ही करना है इस आर्टिकल की तरह। ठीक है, उसे क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ए डी मार्क कर लो ऑन द प्लम्ब लाइन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय सस्पेंडिंग द लैमिना थ्रू द होल बी एंड होल सी, फॉर विच वी गेट द स्ट्रेट लाइन बी एंड सी एफ respectively। It is noticed that the line AD, BE and CF intersect each other at a common point G, which is the position of center of gravity of a triangular lamina, that is the point of intersection of medians। Right, now to question number 9 on book, which is true or false। Question number 9, state whether the following statement are true or false। The position of center of gravity of a body remain unchanged even when the body is deformed। कहते हैं जो center of gravity है वो change हो जाती है when body deformed, that this is false। center of gravity same रहती है, वो change नहीं होती, this is false। The center of gravity of freely suspended body always lie vertically below the point of suspension। हमने अभी पढ़ा ना, जब हम बॉडी को freely suspend करते हैं तो उसकी जो center of gravity वो कहाँ पर lie करती है? at the point of suspension, means this is true। Third, a uniform flat circular rim is balanced on a sharp vertical nail by supporting it at point A as shown in figure। Mark
मार्क द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द रिम इन द डायग्राम लेटर जी। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, जहाँ पर वो बैलेंस हो रहा है, मीन्स दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट, जहाँ पर हमको रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स दी हैं, इसे हमने मार्क करना है। यहाँ इसकी कहाँ पर होगी, इसके हम जब डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर इसके मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर में क्या होती है, सर्कल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज, कहाँ पर होती है यूनिफॉर्म बॉल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है, एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, at its bottom, at its topmost point or at any point on its surface, कहाँ पर होती है, point number A, at its geometric center. Next, the center of gravity of a hollow cone of height h at a distance x from its vertex where the value of x is, value of x कहाँ पर होगी, इसकी हाइट क्या है, h है, और उसका डिस्टेंस x है, तो कितनी होगी, h/3 होगी कि h/4, कितनी होगी 2h/3 या 3h/4, कितनी होगी 2h/3, राइट। This is all about your question B and exercise 1B. In the next AV, we will start the question C. I hope you all understood the exercise B clearly. Thanks and have a nice day.